Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today we will briefly and quickly discuss the Neisseria species. Neisseria is divided into the two species, Neisseria meningitis and Neisseria gonorrhea. Neisseria meningitis specific features is that its capsule is immunogenic and the capsule is the basis of the vaccine. इसके हमारे पास 13 serogroups होते हैं, mainly A, B, C, Y and W135 that causes the disease. Serogroup A, it is a major cause of the epidemic meningitis worldwide. And one important point that you must remember that the sickle cell disease are more susceptible to Neisseria meningitis because we know कि Neisseria meningitis जो है वो हमारे पास encapsulated है, so sickle cell disease patients are more susceptible to this. Now discuss the pathogenesis. Humans are the only natural host that transmission is through the airborne droplets. कैसे transmit करता है? It first colonizes the nasopharynx, goes in the transient flora, then it goes into the bloodstream से जाता है into the meninges and the joints and it causes the meningococcemia and meningitis. Carriers कौन से हैं हमारे पास? Chronic carriers एंड इन द क्लोज कॉन्टैक्ट ग्रुप. ये मोस्टली ज़्यादातर जो है रश वाली जगह पे या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ में जहाँ पे लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे ये पाया जाता है. हाई रिस्क ग्रुप इसमें क्या है? चिल्ड्रन दैट इज़ ग्रेटर देन द 2 months, टीन्स 2 to 18 years, मिलिट्री रिक्रूट्स एंड द कॉलेज स्टूडेंट्स. एंड द कॉमन कॉज ऑफ द बैक्टीरियल meningitis is the Streptococcus pneumonia and the Neisseria meningitis. Okay, so now let's discuss its virulence factors and clinical findings. Virulence factors may first of all that first important is the polysaccharide capsule, that is the major virulence factor. The second one is the endotoxin lipo-oligosaccharide. It causes the fever, shock and septicemia. IgA protease, it helps colonization in the nasopharynx by cleaving the IgA. And the most important and the distinguishing is the factor H binding protein. You must remember this. It inhibits the complement, that is C3b, decreases the opsonization and the MAC formation, and it is also used as an immunogen in the group B vaccine. Okay, जो हमारे पास risk factors हैं, C6 to C9 deficiency and eculizumab therapy which is a C5 inhibitor. These are the risk factors in patients में हमारे पास meningitis या meningococcal infections ज़्यादा होगा. क्लिनिकल फाइंडिंग्स एज वी नो कि ये दो तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं, मेनिंजोकोकीमिया एंड मेनिंजाइटिस. मेनिंजोकोकीमिया में हमारे पास क्या होगा? हाई फीवर, हाइपोटेंशन, पेटिशियल रैश एंड सेप्टिक शॉक. स्फीयर फॉर्म में हमारे पास क्या कॉज करेगा? वाटर हाउस विट्री सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास शॉक होगा, DIC, पर्परा एंड एड्रीनल हैमरेज. मेनिंजाइटिस में हमारे पास फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, इंक्रीज्ड polymorphonuclear neutrophils in the CCF. These are the clinical findings in these two diseases. Now come towards the lab diagnosis. We will do smear, specimen collect करेंगे blood and CCF, smear करेंगे culture, sugar test, latex agglutination and PCR. स्मेयर में हमारे पास ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कंफर्म होगा. कल्चर में हमारे पास चॉकलेट एगर एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनीज फाइंड होंगी. शुगर टेस्ट अगर हम करेंगे तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस फर्मेंट्स द माल्टोज एंड ग्लूकोज और जो नाइजीरिया गोनोरिया है इट फर्मेंट्स द ग्लूकोज ओनली. Latex agglutination test, it detects the capsular antigen in the CCF, and PCR which is the rapid and sensitive. Treatment इसके लिए drug of the choice is the ceftriaxone and the penicillin G, but हमारे पास सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी पाए जाते हैं. एंड ऑल्टरनेटिव अगर बीटा लैक्टेम्स को एलर्जिक हैं तो वी विल गिव द फ्लोरमफेनिकॉल. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्पीशीज़ विच इज़ द नाइजीरिया गोनोरिया. इसमें भी हमारे पास जो ह्यूमंस हैं दैट आर द नेचुरल होस्ट, इट इज़ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और ये हमारे पास वुमेन के अंदर एसिम्टोमेटिक है और मेन के अंदर सिम्टोमेटिक है. न्यू बॉर्न्स जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं एज ए पास टू द वेजाइनल केनाल. सो उनमें हमारे पास ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम ये डिजीज़ पाई जाती है. एंड ऑर्गेनिज्म जो है ये वाला इट इज़ सेंसिटिव टू द कोल्ड एंड ड्राइंग, हैज इट नीड्स द क्लोज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. Major sites of infection, genital tract, anorectal area, throat and eyes. Pathogenesis में important points you have to remember that what are the key features, the virulence factors which causes the pathogenesis. Pili,
सेल वॉल फैक्टर दैट इज एंडोटॉक्सिन लाइपोलिसैकेराइड एंड 3 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है 1, 2 एंड 3, जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन 2 है दैट एड्स इन द अटैचमेंट, IgA प्रोटीएज है, नो कैप्सूल, इनके अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता, और इसमें जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है दैट इज C6 to C9 कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, मेंसेस एंड प्रेगनेंसी, एंड जो स्ट्रेन्स हैं कॉम्प्लीमेंट करीन के दैट कॉजेज द डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मेन के अंदर इट कॉजेज द यूरिथ्राइटिस, जिसमें हमारे पास डिस्यूरिया होगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू द एपिडिडिमाइटिस। वुमेन के अंदर इट कॉजेज द सर्विसाइटिस, साल्पिंजाइटिस एंड फिट्ज-हर्क्यूटिस सिंड्रोम। सर्विसाइटिस में हमारे पास क्या होगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। साल्पिंजाइटिस लीड्स टू द इनफर्टिलिटी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज प्रेगनेंसी अदर देन द साइट ऑफ द यूट्रस। फिट्ज-हर्क्यूटिस सिंड्रोम, पेरीहेपेटाइटिस विद वायलेंट स्ट्रिंग एडहेजन्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एंड डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या प्रेजेंटेशन होगी, आर्थराइटिस, टेंसोसाइनोवाइटिस, पस्चुलर रैश, एंड द मोस्ट important line is the most common cause of the septic arthritis in the sexually active adults is the Neisseria gonorrhea. Also causes the rectal infection and pharyngitis and conjunctivitis in adults through the genital eye transmission. Next comes the lab diagnosis. Lab diagnosis में हम करेंगे gram stain culture and NAAT, that is nucleic acid amplification test. ग्राम स्टेन में मेन के अंदर हमारे पास कंफर्म हो जाएगा दैट इज ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका इनसाइड द PMNs। वुमेन के अंदर लेस रिलायबल है, वी विल कंफर्म इट बाय कल्चर। कल्चर में हमारे पास जो मीडियम यूज़ होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, थायर मार्टिन, ये मोस्ट MCQ से पूछा जाता है। थायर मार्टिन कंपोज ऑफ चॉकलेट टाइगर प्लस एंटीबायोटिक्स। ऑक्सीडेज पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका, इट इज ऑल्सो कंफर्म बाय कल्चर एंड इट फर्मेंट्स द ग्लूकोज ओनली। वी हैव डिस्कस्ड इन द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, उसमें हमारे पास ग्लूकोज और माल्टोज दोनों होते थे फर्मेंटेशन, और जो नाइजीरिया गोनोरिया है इट ओनली फर्मेंट्स द ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक एंड इट डिटेक्ट्स गोनोकोकल DNA इन द यूरिन और स्वैब। नेक्स्ट कम्स ट्रीटमेंट में हम देंगे सेफ्ट्राइक्सोन एंड डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन if pregnancy is present, these are the first line drugs, and alternative में हम क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। फॉलोअप करेंगे दैट इज़ रीटेस्ट आफ्टर द 3 months एंड टेस्ट ऑफ द क्योर इज़ नीडेड ओनली फॉर द फेरेंजियल इन्फेक्शन। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अभी जो हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कस किया उसमें से कुछ है जिसको ये रेजिस्टेंट है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हमारे पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है एंड दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द फ्लोरोक्विनोलोल्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स। प्रिवेंशन हम किसकी करेंगे, वी विल एडवाइज द पेशेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, दैट यूज अ कंडोम एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस एंड द पार्टर्स। नो वैक्सीन इज अवेलेबल बट वी हैव टू ट्रीट द सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करेंगे, ठीक है। And also in chronic cases I told you that if complicated we will do the hospitalization, and in the newborn prophylaxis हम देंगे erythromycin or silver nitrate eye ointment. So here ends the video about the Neisseria species. If you like, share it with your friends. Stay tuned for the more videos. Allah Hafiz.